खोजते हैं, बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं. With this thought in mind, we would like to wish Jai Hind to one and all present over here. Remember the great India soul, commonly known as the Sardar Vallabhbhai Patel. On their birthday, India is celebrating National Unity Day. He was an India's independence barrister and first Deputy Prime Minister and Home Minister of India. Sardar Patel's dedication, loyalty, struggle and sacrifice for the motherland inspires every Indian to dedicate himself for unity and integrity of the country. So to inspire us with good thought, here is Sachin. 31st of October 2023. Today's day is Tuesday. Today's thought for the day is faith is of no evil in absence of strength. Faith and strength both are essential to accomplish and great work. I repeat my good thought. Faith is of no evil in absence of strength. Faith and strength both are essential to accomplish and great work. Thank you very much and have a great day ahead. Keep us updated. I would like to call Riyansh for today's news headlines. Jai Hind everyone. Today's news headlines are पीएम मोदी के दौरे के बाद भारत चीन बॉर्डर पर सफर आसान. स्पोर्ट्स न्यूज. India became second most successful team in ODI World Cup. लोकल न्यूज. आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रातील प्रादेशिक वृत्त विभाग 19 नोव्हेंबर पासून होणार बंद. थँक यू. हॅव अ गुड डे अहेड. The world is full of words. To improve our vocabulary, we should learn new word daily. So for new word, I would like to call Rudra. Jai Hind. Today's new word is unity. Its spelling is UNITY. Unity. I repeat my new word UNITY. Unity. It is a noun. Its meaning is the situation in which people are agreement and working together. Thank you and have a good day ahead. Thank you, Rudra. Every day has its own significance. So the significance of the day here is Shravani. Jai Hind everyone. Today's significance of the day is Rashtriya Ekta Divas or National Unity Day. Is observed on every 31st September every year in India. Thank you very much and have a good day ahead. So to present amazing facts, here is Vedant. Jai Hind. Today's amazing facts are: first, Sardar Vallabhbhai's father was soldier in army of Rani Lakshmibai of Jhansi. Second, he has completed his matriculation at the age of 22. Third, Patel is considered as the Miss Mark of India. Thank you. Have a nice day ahead. Sardar Patel was known as the signifying who happiness for the sake of other. Let's look back in the life of Sardar Patel. I would like to invite Utkarsh. Jai Hind everyone. Today I am standing here to deliver a speech on Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel was a great freedom fighter of India. He was also known as the Iron Man of India. He born on 31st October 1875 in Gujarat, India. His full name was Sardar Vallabhbhai Jhaverbhai Patel. His mother name was Ladba Devi. He was also a successful lawyer. He played the important role in uniting India after 1947. He died on 15 December 1950. There is the tallest statue of Sardar Vallabhbhai Patel called Statue of Unity. Thank you. Have a great day ahead. About the great Mr. Patel, I would like to come on stage to deliver a speech. Jai Hind to all of you. आदरणीय मान्यवर शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसीलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का
मजबूत हाथों से सामना कीजिए। कुछ ऐसी ही विचारधारा थी देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को ही 31 अक्टूबर 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी के समय ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अंग्रेजों के जाते ही भारत खंड खंड हो जाएगा। भारतीय नेता कम क्षमता वाले हैं, वो सत्ता के लिए लड़ेंगे, लेकिन सरदार साहब ने पूरे देश को एक किया और आज भारत उसी ब्रिटेन को पीछे छोड़ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महानात्माओं का निवास रहा है, हमेशा महानात्माओं का निवास रहा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Let's know about the life of Sardar Vallabhbhai Patel. Let's get ready to answer the question. To check your knowledge, here comes Aradhya. Jai Hind everyone. Today I am going to ask you some GK questions. So are you ready? My first GK question is, when is National? Answer is 31st October. My second GK question is, what was the full name of Sardar Vallabhbhai Patel? The correct answer is Vallabhbhai Jhaverbhai Patel. My third GK question is, when was Sardar Vallabhbhai Patel born? Absolutely correct. The correct answer is 31st October 1875. My last GK question is, who was the first Home Minister of India? Absolutely correct. The correct answer is Sardar Vallabhbhai Patel. Thank you, Unnati. Now I would like to call my friend for role player Sardar Vallabhbhai Patel. कैसा है बेटा? अरे यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ? साक्षात सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप यहाँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं बेटा, मेरे बारे में महत्वाकांक्षा देखकर मुझे लगा क्यों न मैं साक्षात तुमसे मिल लूं। मैं तो आपसे मिलकर धन्य धन्य हो गया। मैं आपके विचारों से अधिक प्रेरित हूँ। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए। हाँ, क्यों नहीं। असल में मेरा नाम वल्लभ भाई जावेरभाई पटेल है। सरदार तो मुझे अपने किसान भाइयों ने दी हुई उपाधि है। मेरा जन्म भी तुम्हारे जैसे एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन मुझे अपने भारत माता की पारतंत्र की हालत देखी नहीं गई और मैं अपने भारत माता को सशक्त करने के लिए चल पड़ा। मैं भगवान कृष्ण के विचारों से प्रेरित हूँ, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने पूरे कुशलता और क्षमता से हमें दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। बस इसी का अमल मैंने अपनी जिंदगी में किया है। अच्छा, हम तो केवल भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं, पर आपने सच्चे मायने में उनकी उपासना की है, उनके विचारों को अपना कर। मैंने सुना है कि आपने 566 रियासतों को भारत में विलीन किया है, कृपया उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो वो अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन हमारा सपना अखंड भारत था और हमने सारे रियासतों को भारत में विलीन होने का सुझाव दिया, लेकिन बड़ी खुशी से विलीन हो गई। केवल जूनागढ़ और हैदराबाद के रियासतों भारत में विलीन होने को थोड़े कष्ट लगे। कृपया उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के रियासत
मध्य में बसा था, इसीलिए हमारे अखंड भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता था। 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अपनी सेना भेजी और इससे भयभीत होकर राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत में शामिल होने के अर्थ पर उनकी मदद की गई और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया। फिर हैदराबाद संस्थान कैसे विलीन हुआ? हैदराबाद संस्थान बहुत बड़ा संस्थान था, लेकिन निजाम को स्वतंत्र रहना पसंद था, मगर वहाँ की प्रजा को भारत में शामिल होना था, क्योंकि निजाम उस प्रजा पर अत्याचार करता था। तब गोविंद भाई और रामानंद तीर्थ ऐसे कई नेताओं के नेतृत्व में संघर्ष किए गए और 13 सितंबर 1948 में भारत सरकार ने हैदराबाद में अपनी सेना भेजी और निजाम पर आक्रमण किया और हैदराबाद संस्थान को विलीन कर लिया। ऐसे मेरा अखंड सपना पूरा हुआ। श्रीमान, आप सच में एक सरदार है जो हर कठिनाई का सामना कर अपनी प्रजा की रक्षा करता है। कृपया मुझे आपके विचारों से अभिभूत कीजिए। बेटा, कोई भी अपने जन्म से धन या संपत्ति से सम्मानित नहीं होता, बल्कि अपने कर्म और योग्यता अनुसार उसे उस प्रजा में सम्मानित किया जाता है। अगर दृढ़ता से किसी उद्देश्य की ओर प्रयास करे तो सफलता हमारे कदम चूमती है। एक बात हमेशा याद रखना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। चलो अब मेरे जाने का समय हो गया है, चलता हूँ। श्रीमान, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने क्रम का और सच्ची निष्ठा और दृढ़ता से वहन करूँगा। प्रणाम। थैंक यू। A school assembly is the platform where we can show our talent, and to make this assembly more special, I would like to call Unnati for moral story. आदरणीय मान्यवर और मेरे प्रिय मित्रगण, आज मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें सरदार नाम कैसे प्राप्त हुआ उसकी कहानी बताने जा रही हूँ। जब हमारा देश गुलाम था तब गुजरात के कुछ किसानों की फसल खराब हो गई और जो अंग्रेज थे उन्होंने भी 6% से 22% टैक्स बढ़ा दिया था और अगर तुम टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन हड़प लेंगे। किसान गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी बिजी थे तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को भेजा। वल्लभ और किसानों ने पटेल जी को सारी बात बताई और बोले हमारी जमीन हड़प लेंगे। तभी पटेल जी ने एक आइडिया लगाया और बोले मैं गुप्तचर बनाता हूँ और पता लगवाता हूँ आज किस किसान की जमीन हड़पने वाली है। और उनने अपने गुप्तचरों से पता लगवाया आज किस किसान की जमीन हड़पने वाली है और उसको गायब कर देते थे। अब जब गायब किसान अंग्रेज ढूंढे भाई किसान कहाँ गया, जिसका घर नीलाम होने वाला हो उसको गायब कर देते थे पटेल जी। अंग्रेज परेशान हो गए, ना उनको टैक्स मिलता था ना उनको जमीन मिलती थी। वो घबरा गए और माफी मांगी, भाई आप 22% नहीं 6% टैक्स दे दो। अब ये बात सुनकर जो किसानों की जो पत्नियां थी वो खुश हो गई और बोली आज से आपका नाम वल्लभ भाई पटेल नहीं, आज से आपका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। कोशिश करना हमारा फर्ज है, अगर हम अपने फर्ज को पूरा ना करें तो हम लोग ईश्वर के गुनहगार बनते हैं, तो हम ईश्वर के गुनहगार बनते हैं। थैंक यू जय पटेल देश के एक ऐसे नेता थे जिन्हें भारत कभी भुला नहीं पाएगा। उनके बिना आज के भारत की कल्पना करना ही नामुमकिन है। उनकी दूरंदेशी और राष्ट्र प्रेम हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे और हम उन्हें गर्व से सरदार कहते रहेंगे। सरदार सरदार
आज सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती साजरी करत असताना उपस्थित आपल्या शाळेचे प्रिन्सिपल रवी सर, राणी मॅडम, ज्ञानभवनचे पवार सर, उपस्थित सर्व शिक्षक वृंद, विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या शाळेमध्ये स्पेशल असेंब्ली म्हटलं की आवर्जून शाळेत उपस्थित राहावं वाटतं. कारण ज्या दिवसाचं महत्त्व आहे किंवा ज्यांच्याबद्दल आपल्याला एक कृतज्ञता व्यक्त करायची आहे, ती कृतज्ञता इतक्या चांगल्या पद्धतीनं आणि स्मरणात राहील अशी एक पद्धत आपल्या शाळेमध्ये आहे. त्याचा मला खूप गर्व वाटतो. आणि आज ज्या मुलांनी या ठिकाणी ॲक्ट केलं, भाषणं केली, त्यांचं खूप खूप मी अभिनंदन करतो. आणि मला वाटतं हे करता करता आपल्यामध्ये पण ते गुण यावेत यासाठी एक प्रकारची आराधना आपण या ठिकाणी करत असतो, नाही का? आपण प्रत्येक महापुरुषांची प्रत्येक सणाचे सेलिब्रेशन या ठिकाणी करतो. याचा उद्देश एकच आहे की आपल्यामध्ये हे गुण यावेत. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी किंवा आपलं स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी अनेक महापुरुषांनी आपल्या जीवनाचं बलिदान त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्यात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचाही एक खूप वरच्या क्रमांकाला नंबर लागतो. आपण सर्वांनी पाहिलं त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये आपल्या देशासाठी काय केलं. ह्या लोकांनी जर देशासाठी काहीच केलं नसतं तर आज आपल्याला इतक्या मोकळ्या वातावरणामध्ये, इतक्या आनंदाने आपल्याला शिक्षण घेता आलं नसतं. आपल्या देशाची अशी प्रगती झाली नसती. म्हणून आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की आपण आपल्या शाळेमध्ये फर्स्ट नेशन, प्रथम राष्ट्र, प्रत्येक कृती राष्ट्रहिताची, विश्वशांतीची हा संकल्प आपण शाळेमध्ये केलेला. प्रत्येक शिक्षक पगारासाठी शिकवतो. माझ्या मुलाबाळांचा या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं उपजीविका चालावी यासाठी मी शिक्षक बनलेलो आहे. यासाठी मला पगार मिळतो हे डोळ्यासमोर न ठेवता मी देशाचा एक शिल्पकार आहे. मी माझ्या देशाला घडवण्यासाठी मी शिक्षक झालेलो आहे. मी माझ्या देशाला जगाच्या पाठीवर एक नंबर बनवण्यासाठी मी शिक्षक झालेलो आहे. मी देशहित लक्षात ठेवून मी माझ्या मुलांना घडवीन असे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवून काम करणारे शिक्षक आपल्या शाळेला लाभलेले आहेत. म्हणून मला वाटतं की मी इंजिनियर होईल, मी डॉक्टर होईल, मी कलेक्टर होईल, मी पंतप्रधान होईल, मुख्यमंत्री होईल आणि मी माझ्या देश बांधवांना माझ्या पदाप्रमाणे मी त्यांची सेवा करेल आणि माझा देश सर्व दृष्टीने समृद्ध करण्याचा मी प्रयत्न करेल. हा विचार आपल्या मनामध्ये नेहमी असला पाहिजे. आणि ज्यांच्या मनामध्ये हे विचार आई शंका नाही. म्हणून आज आपण सर्वांनी ठरवूया की खूप चांगलं शिकूया, मोठ्या पदावर जाऊया आणि आपल्या देश बांधवांची मनपूर्वक सेवा करूया. आणि तशी सद्बुद्धी आणि शक्ती परमेश्वर आपल्या सर्वांना देवो. त्यासाठी मी परमेश्वराला मनपूर्वक प्रार्थना करतो.
मला या ठिकाणी प्रत्येक वेळेस बोलण्याची संधी दिली जाते आणि तुम्ही शांत चित्ताने ऐकता, त्याबद्दल मी आपलं खूप खूप आभार मानतो. माझ्याकडून बोलता बोलता काही चुकीचं बोललं असेल ते सगळे शब्द मी परत घेतो आणि तुम्हाला सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्यासारखे गुण आपल्यामध्ये येण्यासाठी परत एकदा प्रार्थना करतो. धन्यवाद. थँक्यू.